Good evening, ladies and gentlemen. The people who are joining us today on various online platforms. This is Aishwarya Pratap Singh, Chief Director and the founder member for Experience Sharing National Foundation and Trust. Here today, back to our another session with our special guest for the Founders Day. Uh, Here today we have a very experienced personality who has always shown deep commitment for her work, especially in the field of yoga. Her specialization in various aspects of yoga makes her more young uh, from mind, from mentally and physically as well. She is currently the director for heavy industries under Government of India. She is also the vice chairman of Indian Yoga Association. She is the state convener for Mahila Morcha BJP Madhya Pradesh. She has also shown deep commitment in her election campaigns in Lok Sabha, Delhi and Madhya Pradesh state. She is a legal advisor at Indian Schools of Image Management, Mumbai. She has also served in schools as principal and head of the departments. She has also set up so many of national workshops. She has honored by the CM of Chhattisgarh for her work in the field of yoga, and Chief Minister Shivraj Singh Chauhan ji of Madhya Pradesh honored her with Nari Shakti, which is one very prestigious award. The Vice Chancellor for HSG University and Chairman for UGC honored her for her work in yoga again, and she is also awarded by Ayush Parasad for Patanjali State as Patanjali State Yoga Awardee. So all through, what I always say is कि मैडम एक all-rounder हैं और especially she started her career in yoga, with yoga, by yoga. So Madam, Dr. R.H. Honorable Chief Guest for today's event, Madam Dr. Honorable R.H. Lata is joining us today from Bhopal. I am highly grateful and honored to have you, Madam, today. ये मेरा सौभाग्य है. It's a privilege to have you today on the national platform for Experience Sharing National Foundation. Welcome, Madam. Welcoming you. नमस्कार ऐश्वर्या, मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया है और आज आपको डबल कांग्रेचुलेशन भी बोलना चाहूंगी कि आज आपका फाउंडर डे है और आपने इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल की है, तो ये तो बहुत तारीफ के काबिल है. तो मेरा आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज आपके साथ बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा. डेफिनेटली ये जो हमारा फाउंडर्स डे स्पेशल चल रहा है जो कि 20 जून तक चलेगा, इसमें जो इसकी खास बात है वो यही है कि इस पर्व को हम सक्षम बना पाए. उसमें आपका और आप जैसे दिग्गजों का बहुत बड़ा हाथ है. मैं तो कहता हूँ पूरा हाथ आप ही लोगों का है. There is a very common saying कि एक successful, there is a woman behind a successful man. But here I have a lot of our team of women behind the successful Experience Sharing National Foundation. So thank you very much all of you for making this so easy, this whole journey. खैर ये एक दूसरा एस्पेक्ट है. आज हम आपसे अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, जिसमें जो मुख्य विषय रहेंगे वो हेल्थ पर हम बात करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन पर बात करेंगे,
इंडस्ट्रीज एंड मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रीज पर भी आज हम बात करेंगे, और अगर संभव रहा तो विदेश के कुछ मुद्दों पर भी आज हम आपसे वार्ता करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तैयार हैं, और अब हम पूरी तौर से तैयार। अपने क्वेश्चन से हम फायर करना स्टार्ट करते हैं, और आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा। Here with the first question, we would like to know about you, आपके बारे में, and about your family background. कहाँ से आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद किस तरीके से जो आपकी फर्दर एजुकेशन क्वालिफिकेशन गई, एंड देन आज आप will go with your primary education system before married, before you got married, इससे पहले कि कुछ अच्छे अपनी यादें आप साझा करें हमारी ऑडियंस के साथ। ये लंबा क्वेश्चन है, और ऐश्वर्या, मुझे पहली बार बहुत खुशी हो रही है किसी इंटरव्यू को देखकर कि मैं सबसे पहले आपसे बहुत प्रभावित हूँ ये देखकर कि जिस एज में बच्चे सिर्फ अपनी हॉबीज के ऊपर अपना समय स्पेंड करते हैं, बाकी अपनी एंटरटेनमेंट में ज्यादा समय देते हैं, उस समय पर आपको इतना गंभीर विषय को लेकर इतने लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सच बताए तो ऐश्वर्या, आज मैं बहुत अच्छी बातें, और वो बातें जो मैंने आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं, मैं करूँ, क्योंकि वो एक टीनेजर बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज होगा। और मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी बात को रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने कभी को पता ही नहीं। आपने क्वेश्चन किया है कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन, मेरी परवरिश को लेकर, मेरा परिवार, मेरे पिता फौज में थे, आर्मी में थे, और जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय तक वो रिटायरमेंट उनका हो चुका था, और वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको इंडियन ऑयल लीडरशिप दी गई, तो वो आसाम में जाके सेटल हुए। मेरी परवरिश बचपन की पूरी आसाम की, तो मैंने प्रकृति की गोद में आंखें खोली है और बहुत खूबसूरत दुनिया देखी है बचपन में। हमारा घर से स्कूल करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर हुआ करता था, जहाँ हम लोग पैदल ही चल के जाते थे, जैसे आजकल बस चलती है वैसे हम लोग पैदल चल के ही जाते थे। बहुत सुंदर स्कूल था, और इवन अभी मैं रिसेंटली वहाँ गई थी तो मैं फिर वहाँ गई, वो वैसे के वैसा है और बहुत खूबसूरत है। तो मैंने प्रकृति की गोद में बहुत चीजें करीब से देखी है, महसूस करी है। अगर हम बचपन की बात करते हैं तो मेरा बचपन बहुत खूबसूरत था, जो हमारे आजकल के बच्चों को देखने को नहीं मिलता है। मैंने तितलियों के पीछे दौड़ी, फूलों को डेली कलेक्ट करना, पक्षियों की अलग अलग तरह की आवाजें सुनना, क्योंकि हमारे घर के पीछे पूरा जंगल ही था, जहाँ अक्सर जंगली जानवर भी आ जाया करते थे। पहाड़ियाँ थी जहाँ पर हम दौड़ के चढ़ा करते थे। तो प्रकृति की बिल्कुल खूबसूरती के बीच में हम पले बड़े। तो ये मेरा बचपन था। लेकिन कई बार होता है ना कि इस वक्त कुछ और अपने भाग्य को बना के रखता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीजें हुई लगातार। ये थोड़े से बड़े हुए 6 क्लास तक आए तो असम में आंदोलन शुरू हुआ। असम आंदोलन आपने सुना होगा। फिर उसके बाद ही अल्फा का गठन हुआ था, तो सारे स्कूल बंद कर दिए, हम 1 साल घर में ही बैठे थे। फिर फाइनली फादर ने हमारे लोग को यहाँ एमपी लेकर आए और यहाँ पर एडमिशन करा दिया। और जब कॉलेज का एडमिशन जाना तो होता ही था, ऐसे घर में, पर हमारी फिर शिक्षा जो है प्राइवेट जैसे शुरू हुई। ये बस पेपर के टाइम पर एग्जाम देके आओ, फिर चले जाओ, ऐसा रहते वहाँ के एग्जाम देके आना। और कुछ घर की जो असम आंदोलन हुआ तो हमारा बिजनेस भी हमारे फादर का डिस्टर्ब हुआ, तो आर्थिक समस्याएं भी उस टाइम पे बहुत रही। तो हमारे पिता जरूर आर्मी में थे और उस टाइम के बड़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन हमारी माँ
व्यवहार वो बिल्कुल टिपिकल हमारे राजपूत फैमिली और उनके सोच का ही था। तो उन्हें ऐसा लगा कि अरे अभी इतनी सारी दिक्कतें हैं, आर्थिक समस्या भी है और लड़कियों को पढ़ा के ज़्यादा करना क्या है। तो एक गलत डिसीजन उनसे उस वक्त हो गया और उन्होंने कुछ नहीं देखा और मेरी फैमिली में सब पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी अच्छी फैमिली में एडवोकेट है हमारे जीजाजी, बाकी सारे लोग भी सब अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, लेकिन मेरे साथ ही कुछ ऐसा होना था शायद। तो उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने मेरी शादी कर दी जब मैं बिल्कुल टीनेज में थी, 13 साल की हो, और मैंने प्राइवेट गेट का एग्जाम दिया और उसके बाद मेरी फाइल टोटली बंद कर दी, मतलब पढ़ाई बंद, शादी हो गई है तो आपकी फैमिली वाले ही देखेंगे, वो आगे की जिम्मेदारियां उनकी है, तो पढ़ाई नहीं कराना है, क्या करना है, घर में खाना ही पकाना है वगैरह। लेकिन कुछ टाइम में ही पेरेंट्स को ये समझ में आ गया कि मुझसे बहुत बड़ी दिक्कत है। उन्होंने जो मेरी जो स्थिति देखी, मेरी दुर्दशा देखी, तो रियलाइज किया उन्होंने, फिर आगे चल के वो रिश्ता उन्होंने खुद ही समाप्त किया और मुझे फिर से पढ़ाया। तो फिर से भी पढ़ाया तो वो मुझे ग्रेजुएशन तक पढ़ाया। उसके बाद फिर उन्होंने कह दिया कि अब इससे आगे हमारी जिम्मेदारी है, जानो तुम्हारा। तो कहने का मतलब है कि बहुत स्ट्रगल चलता रहा। मेरा बचपन जितना खूबसूरत था, उसके बाद का समय बहुत ही कठिनाइयों भरा, अति कठिनाइयों भरा। तो फिर मैंने आगे की पढ़ाई खुद अपनी जारी की और प्राइवेट जॉब की और साथ में अपना आर्ट भी किया और साथ साथ में पढ़ाई की। इस दौरान मैंने अपनी मर्जी से फिर शादी की, हालांकि वो भी चली नहीं आगे सकी क्योंकि जो हमारे परिवारों में हमारे जो सामाजिक दूरी बाध्यताएं हैं जो लोगों को जीने नहीं देती है, उसमें क्वेश्चन रेज करती है, तो उनके साथ भी वही सारी समस्या, फैमिली के साथ वही सारी समस्या है, तो आगे तक। पर इन सब के बीच में मैंने जो एक काम किया, मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा। मैंने सारे काम किए, जॉब भी की, ट्यूशन कराया, सब कुछ किया, लेकिन अपना जो कहते हैं ना अपना ओन अर्न करना, अपना खर्चा खुद उठाना, वो मैंने किया। साथ में मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई मेरी कभी भी नहीं छूटी क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा भविष्य यहीं पर है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत बुरे कड़वे अनुभव है उस दौरान के बच्चे को पालते हुए जॉब करना और पूरा परिवार, दोनों फैमिली में कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं, दोनों फैमिली बिल्कुल अलग, मतलब मैं बिल्कुल अलग। तो ऐसे में ही सारे कामों को करते हुए, बढ़ते हुए चलते गए। कुछ चीज़ों में बड़ी लगी रही कि जब भी मैंने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया तो मुझे अच्छी जगह काम भी मिला। इसी तरह मैं वनस्थली की जब मुझे फिर बाद में परमानेंट जॉब। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगा कि जीवन सिर्फ यही तक नहीं है, बहुत प्रश्न, क्योंकि बचपन से ही मैं बहुत विचार करने वाली, सोचने वाली, ये कहा जाए कि खुली आंखों से सपने देखने वाला मेरा स्वभाव रहा है। मैं बचपन में ही बहुत सारी जो आज के समय में मैं देखने वाली मोदी जो कर रहे हैं, वो मैं बचपन में एक एक चीज का सपना देखती, बाइक को लेकर। जब हम गुवाहाटी में जाते थे, हमारा घर गुवाहाटी से थोड़ा दूर है, ऐसे 40 किलोमीटर, तो वहाँ पे फैंसी बाजार, उजान बाजार, पान बाजार जो एरिया है, बड़ा क्राउडी एरिया है और वहाँ बड़ी भगवान ने आपको आपकी हार्ड वर्क का, आपकी मेहनत का, आपको ही जो भी आपने अपने जीवन में कठिनाइयां सही झेली, उनका फल आपको दिया है नाउ। ये एक बहुत स्वयं आपके लिए भी बहुत गर्व की बात है, आपके पूरे फैमिली के लिए, और जो भी सुनता है ये काफी गर्व की बात है that we can see that how women are empowering them own self। कैसे बाकी जो नारी शक्ति आपको पुरस्कृत किया गया है नारी शक्ति से, वो बिल्कुल परफेक्ट एक आइडिया है ऑफ गवर्नमेंट। एंड दिस इज रियली, यू आर इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस वे कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद आप अच्छा कर सकते हैं, और व्हेन यू विल वर्क हार्ड तो डेफिनेटली आपको अपनी मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा।
इसी के साथ ये भी आपके बारे में कहना गलत नहीं होगा कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान एक जीवन का बड़ा हिस्सा स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो बीजेपी कैंपेनिंग या फिर जो कि नारियों के अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो इंटरनेशनल जो नेशनल आपने जो वर्कशॉप्स किए उनमें आपने काफ़ी हार्ड वर्किंग स्ट्रेटजी कमिटमेंट के साथ आपने इन कामों को किया। और जब आप बात करते हैं तो विल ऑलवेज गो थ्रू कि यू आर जैसा कि आपने कहा कि आप ज़मीन से काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो जब हम इस तरीके की धारणा रखते हैं तो किस तरीके से यू कैन से दैट जब आप हारने लगती थी यू फील कि यार लोग कई बार बातें बनाते हैं दैट ये क्या करेंगी या समथिंग लाइक दिस, तो इस टाइम पे कैसे आप खुद को सांत्वना दिया करती थी कि नहीं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, कैसे ओवरकम किया करती थी इन फियर्स से? ये चीज तो मेरे साथ पूरी जिंदगी मतलब ही नहीं है, लेकिन लगातार चलता ही रहा कि कहते हैं ना कि कभी भी ऊपर आ जाना उन सब चीजों से, कभी फिर से उसमें डूब जाना। तो परिस्थितियां बराबर, क्योंकि लॉन्ग पीरियड मैंने उसमें निकाला कि जब मैं खुद सर्वाइव कर रही थी, फिर मेरे बच्चे सर्वाइव कर रहे थे, उनकी पढ़ाई, उनको अच्छा एटमोसफेयर देना, उनको कहीं से वो मॉरली डाउन ना हो, तो वो सब चीजों का भी ध्यान रखना। तो ऐसे में नेचुरल है, हम इंसान हैं तो कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, इतने ज्यादा भी दुखी हुए कि कई बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जैसी परिस्थिति में जो भी महिलाएं होती हैं तो वो बिल्कुल ही हार जाती हैं, तो फिर एक सुसाइड के लिए भी अपना रास्ता सोचने लग जाती है। मेरे भी मन में ऐसे कई बार विचार आए, मैंने भी कई बार सोचा यार ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर मुझे लगता था मेरे सामने बच्चे जब दिखते हैं ना माँ को, माँ चाह के भी मर नहीं पाती। पता नहीं कैसे लोग ऐसा, मैं जब इंसिडेंट देखती हूँ ना कि उन्होंने बच्चों को भी मार दिया, खुद भी मर गए, बड़ा गलत करती है। लेकिन बच्चे उनकी ताकत होते हैं और मेरी ताकत तो मेरे बच्चे ही है। तो वो मुझे हमेशा प्रेरित, ईश्वर ने मुझे इतने प्यारे इतने खूबसूरत बच्चे दिए हैं कि मैं सब हमेशा इसी बात का उन्हें धन्यवाद देती कि मेरी ताकत हमेशा वही है। उन्होंने ही कहा जाए कि मुझे हर पल आगे बढ़ते रहने की, आगे सोचने की, अच्छा सोचने की, अच्छा करने की जो प्रेरणा थी। मैं मन से कभी ज्यादा दुखी नहीं होती, मेरा स्वभाव है। कोई दुखी भी घड़ी होती है ना, उसको भी मैं बांध के बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाती। वो बहुत थोड़ा टाइम के लिए मुझे हर्ट करती है, बहुत थोड़े टाइम के लिए मुझे सोचने में मजबूर करती है, लेकिन उसके बाद मैं उसको साइड करती हूँ, फिर मैं अपने में इंजॉय करती हूँ। सर ने ये कुछ प्रवृत्तियां मुझे जन्म जाती है कि मैं अपने आप में बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि उनके साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब इसको आप इमोशनल पार्ट भी कह सकते हो, कुछ लोग पागलपन भी कहते हैं, लेकिन नहीं, मैं बचपन से ही मेरा इंटरेक्शन उनके साथ बहुत ज्यादा रहा। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं अकेली, या मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई मदद करने वाला नहीं। जब भी ऐसी समस्या जीवन में आई तो चमत्कारिक रूप से कोई ना कोई सपोर्ट मुझे मिला, चाहे वो अपने लोगों से मिला हो, चाहे बाहर के लोगों से मिला हो, या किसी अनजान लोगों से मिला, पर मिला। तो ऐसे ही चलता रहा। निराशा के भाव सब में आते हैं, मेरे मन में भी जब आते थे तो मैं थोड़े दिन के लिए सोचने के बाद काम में लग जाती थी, क्योंकि मेरी ड्यूटी मेरे पास ज्यादा थी। ड्यूटी से मतलब जब जहाँ रहती थी तो घर के काम भी मेरे पास थे, क्योंकि मैं ऐसी हालत में नहीं थी कि बहुत सारे घर में सर्वेंट लगाते थे, तो खाना को बनाना है, इतना साफ सुथरी को करना है, और साथ में जो जॉब कर रहे हैं उसकी भी तैयारी करनी है, और थोड़ा पहचान वाले हैं, बच्चे को भी टाइम देना है। तो मेरे पास काम इतना होता था कि मैं उसके कारण कभी ज्यादा डिप्रेशन में जाती थी। ईश्वर ने मौका दिया, तो जब भी ऐसा माहौल बना तो ही दूसरा रास्ता मेरे सामने रख दिया करते। और
भी जो मिले, जहाँ पर भी मैंने सेवाएं दी है, वो अ, ये भी कहते हैं कि भाग्य से ही मिलता है कि आप इन लोगों के साथ मिल रहे हैं, इनके साथ आपका सफर कर रहा है, इनसे आप जुड़ रहे हो। अब जैसे आप, मैं तो आपको जानती नहीं, लेकिन आप जुड़े, आपने मुझे संपर्क किया, ऐसे ही ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलाया, अच्छी अच्छी लोगों से संपर्क बने, बात हुई, काम हुए, उनके साथ काम करने को मिला। तो ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने बहुत प्रयत्न किए, कुछ चीजें ईश्वर ने भी मुझे दी। जब बात एक्सपीरियंस की आती है तो एक चीज देखी जाती है, इफ यू डोंट माइंड, जो आपका एक बड़ी जो लोग हैं नॉर्मली, जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि टुडे देयर आर पीपल who are continuously working to become IAS officers, IPS, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए, मे बी डॉक्टर्स, इंजीनियर। एक हर बच्चे की तमन्ना रहती है फ्रॉम द वेरी शॉर्ट एज, क्योंकि हम वो सुनते हैं, हमारे कल्चर में कुछ ऐसा है कि फोन पे काम होते हैं। आपने भी बेशक सुना होगा, और आजकल ये तो छोटे छोटे बच्चे तो आज जो एक पद पर आप हैं, एक जो मुकाम आपका है, वो वाकई एक ऐसा मुकाम है जब चीजें उतनी मुश्किल नहीं रह जाती जितनी किसी भी और के लिए होती हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज डायरेक्टर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज, ये एक ऐसा मुकाम है जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी, जो लोग जुड़ते हैं आपसे, या जो जुड़ते हैं आपसे, तो एक धारणा रखते हैं कि शी इज द वन हु कैन बी हेल्पफुल व्हेन नीड। और क्योंकि आप जमीन से जुड़ी हुई हैं, आपने परेशानियों को महसूस किया है, तो इस दौरान जब कोई भी व्यक्ति आपसे किसी भी ऐसे काम की आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज कुछ करवा दीजिए या ऐसा, तो ये एक पर्सनल मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेरा बड़ा मन था मैं किसी से पूछूं, और बिकॉज आई हैव यू टुडे, तो क्या आप मैं जरूर आपका इसका जवाब दूंगी। तो हाँ, मुझे उम्मीद है आप पहली बात क्वेश्चन। तो जो आपने पूछा कि बड़े होके बच्चे क्या बनना चाहते हैं, ये उनका क्वेश्चन होता है। मैं जब छोटी थी तो उस समय मेरे मन में, क्योंकि मुझे फादर का इंप्रेशन मेरे पे बहुत ज्यादा था, तो मैं सोचती थी कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। और मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती थी किरण बेदी जी, वो मेरी बहुत आइडियल थी। आप ये सोचिए कि बचपन में मैंने बहुत सारी उनकी फोटो कटिंग कर करके घर में अपने रूम में लगा रखी। मुझे इतना अच्छा लगता था उनको देखना। लेकिन मेरे बड़े वाले जो भाई थे उस समय दिल्ली पुलिस में ही थे, तो उनको मैंने बताया कि मैं किरण बेदी जैसा बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम एक तो फोटो उन्होंने दिखाया, जैसे एक बॉडी दिखाई जिसका टाइप था, तो बोले तुम ऐसी चीजें देख सकती हो क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैं उसको देखते ही घबरा गई। तो बोले तुम पुलिस में नहीं जा सकती, तुम इसके लिए ट्राई मत करो। तो मैंने वो चैप्टर वहीं क्लोज कर दिया। फिर मेरा दूसरा था कि अगर ठीक है पुलिस वाली नहीं बन सकती तो मैं IPS और IAS ऑफिसर तो बन सकती हूँ। तो फिर मैंने उसकी भी तैयारियां की, मतलब जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम पर मैंने 2 बार IAS और PSC का भी एग्जाम दिया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कहा जाए कि दोनों बार ऐसा हुआ कि उस टाइम जब मेरा सेंटर पड़ा दिल्ली था, तो मैं वहाँ सेंटर तक पहुँच नहीं पाई। दूसरी बार जब सेंटर पड़ा तो उस दिन मैं इतना हाई फीवर है, तो मुझे लगा कि सिर्फ चाहता ही नहीं है कि मैं IPS या IAS बनूं। तो फिर मैंने उसके बाद नहीं ट्राई किया। वो 2 ही बार किया, दोनों बार ऐसा हुआ। तो ये मैं हमेशा संकेत समझ लेती हूँ कि मुझे लगता है कि इस चीज में व्यवधान आ रहा है, ये मेरी साइड नहीं है, मुझे इधर नहीं जाना। तो फिर मैंने उसके बाद ट्राई की, लेकिन मेरा मन बहुत था कि मैं कोई ऐसी ऑफिसर बनूं जहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से काम करने को मिले। तो ये मेरी पूर्ति हुई जब मैं
मिसेस बाल आयोग की सदस्य बनी जब, तो वो भी एक देखा जाए तो मिनिस्टर के बराबर इक्वल टू मिनिस्टर की पोस्ट होती है, और जर्नलिस्ट के अपनी जो पावर होते हैं ऑलमोस्ट थोड़े बहुत उनको भी मिले हुए होते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो हमारे मन में थी वो थोड़ी पूरी वहाँ पर हो सकती है। तो उस समय पर जब ईश्वर ने मुझे मौका दिया तो मैंने सबसे पहला काम किया चाइल्ड मैरिज पे काम। मैंने अपने 3 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अगर मैंने बहुत मुहिम चलाई तो चाइल्ड मैरिज पे चलाई, और मैंने उसके लिए सरकार को भी बहुत देखा, बहुत सारी अपनी सजेशंस भेजी उसमें, जिसमें से कई सारी चीजें कंसिडर की होगी। और जहाँ भी इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती थी तो मैं सबसे पहले इसका मदद करती। मेरा नंबर उस टाइम पर गूगल पे भी कोई सर्च करे तो मिल जाता। वो रात के 12 बजे 1 बजे फोन लगाते थे, शादी हो रही है इसको रुकवाना है, तो कुछ मेरा ऐसा हाल हो रखा था। तो जो चीज मुझे तकलीफ थी और मुझे लगा कि लड़कियों के लिए नरक की चिंता है ये जो भी काम होता है उसको रोकना, तो उसके लिए मैंने बहुत काम किया। तो इसके लिए मैं ईश्वर को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को भी एक ऐसा मौका दिया। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात, ऐसा कहीं नहीं मिलता। मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मतलब पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन जब इस तरह के अपॉइंटमेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद होता है। तो मुझे ये आशीर्वाद मिला और काम करने का मौका भी मिला, तो मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार। रहा सवाल मदद करने का, कि वो मेरा स्वभाव है, उसको मैं छोड़ नहीं पाती, और इसके लिए मुझे मेरे बच्चे कई बार डांट लगा देते हैं, क्योंकि कई बार मैंने ऐसी मदद भी की है कि जब मैं खुद परेशान, मेरे पास अपनी व्यवस्थाएं करने के लिए भी साधन नहीं है, तब मैं किसी और की मदद करती हूँ। तब मैं किसी और को मैं ढूंढ लेके या जब कुछ भी करके मैं पैसे दिला दी हूँ, तो मैंने ऐसे उसको बेवकूफी कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, मैं करती हूँ। जो मिडिल क्लास की महिलाएं हैं, अपर क्लास की महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत सारी समस्या। जो निर्धन वर्ग की, मतलब गरीब वर्ग की तबके की जो महिलाएं होती हैं, वो अपनी समस्याओं को खुल के बोल देती, क्योंकि उनको परवाह नहीं लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो रहते ही उसी लोकेलिटी में। लेकिन मिडिल क्लास और अपर क्लास की महिलाओं के साथ बहुत सारी समस्या है। वो अंदर ही अंदर घुटेगी, परेशान होगी, ना तो विरोध करने के पास साधन होते हैं, ना वो पाती है, ना उससे उभर पाती। तो मैं ऐसी महिलाओं के लिए मैंने एक साझा ग्रुप बनाया हुआ है, और हम सब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, कहीं पे भी ऐसी कोई समस्या है मदद करते हैं। आपने देखा होगा मेरा फेसबुक पे भी एक पेज है संवाद शक्ति के नाम से, और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है समर्थ नारी, जिसमें ऐसी और लड़कियों को हमारे समाज में अब तो बहुत सरकार भी इतनी योजनाएं ला दी है कि अब वो समस्या ना के बराबर हो गई है। इनके लिए भी मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने महिलाओं और बेटियों के लिए बहुत काम किया है और आगे भी कर रहे हैं। आज हम जिन चीजों के लिए रोना रोते थे वो सब समस्या रही नहीं, अब जो बची है वो है हमारे समाज की सोच। सिर्फ उस सोच को बदलने की जरूरत है, बाकी सरकारों की अपनी करनी। तो उस सोच को बदलने के लिए मैंने अभी लड़कियों के लिए भी पिछले 2 साल पहले एक योजना पूरी बनाई और शुरू भी की है राज्य शिक्षा नीति के साथ मिलकर कर रही हूँ। इसका नाम दिया मैंने एजुकेशन। जो कुछ सीन है वो क्रिएट किया हुआ है, वो जो दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम बहुत संपन्नता के साथ रह रहे हैं। हाँ, ये है कि कोई चीज की महंगाई जो 2 रुपए में आती थी, आज ये कह सकते 4 रुपए में आ रही है, लेकिन हम खरीद नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं कोई बड़े लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। हम भी एक सामान्य साधारण व्यक्ति हैं, हम भी जी पा रहे हैं, अच्छे से जी पा रहे हैं। तो हमारा अगर कोई चीज के लिए हमारा जब स्तर उठता है, जब हम उसको ठीक
करते हैं, हमारा विकास होता है, तो हमारी लाइफस्टाइल भी बदलती है। हम फिर पुराने तरीके से नहीं रह सकते, उसी तरीके से नहीं चल सकते। तो स्वाभाविक है कि भारत ने भी इसके लिए पूर्व तैयारी की हुई। अमेरिका की जो मंदी है उसका प्रभाव एक आईटी सेक्टर पे भी पड़ा कि आईटी जो है सबसे ज्यादा भारतीय लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। काफी सारी कंपनीज हैं जो जिनके ऊपर उनका असर पड़ने वाला है। और साथ में जैसे जो प्रोडक्ट वहाँ आते हैं या जो कंपनी वहाँ इन्वेस्ट करने का या इन फ्यूचर में वहाँ कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे होंगे, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा क्योंकि वो इतना कोप अप नहीं कर पाएंगे ना उसके अनुसार। तो स्वाभाविक है कि वो कंपनी भी अब इन्वेस्ट करने के लिए वहां जाने की बजाय हमारे भारत में ही मार्केट देगी। तो हमारे लिए तो कहीं से भी नुकसान नहीं है, भारत के लिए तो कहीं से भी नुकसान नहीं है। जो भी उसका असर आएगा वो बहुत अच्छा होगा। बस जरूरत है कि आप हमारे देश के युवाओं को, लोगों को, नागरिकों को उस बात को अच्छे से समझें और ना क्रिटिसाइज करें बल्कि काम करें, उसके लिए योजना बनाएं, उसके लिए प्लानिंग करें, अपना मैनेजमेंट बनाएं। तो इसकी आवश्यकता ज्यादा है। और जब हमारा देश विकास करेगा, देश का नाम वर्ल्ड में अगर फेमस होगा, तो कदर बड़ी होती है। इस चीज का लोग क्यों नहीं सोचते, मुझे ये बात कभी समझ नहीं आती है कि वो अपने ही देश को नीचे खींचने की और उसके नाम को खराब करने की कोशिशें क्यों करते हैं। तो तैयारियां हैं और हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम उस तैयारी में शामिल हों, उन समस्याओं के सुधार के लिए काम करें और उसके विकास के लिए अपना योगदान दें। एक और न्यूज़ जो कि अभी ट्रेंडिंग पर है, विच इज़ जो टेस्ला कंपनी है, वन ऑफ द वेरी रेनॉल्ड इंटरनेशनल कंपनी। टेस्ला के अभी डायरेक्टर ने, मे बी द मैनेजिंग डायरेक्टर, उनने अभी अनाउंस किया है कि वो 10% जो उनकी जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें बाहर करेंगे। तो क्या ये हम क्यों, और उन्हें जो रीज़न इसके पीछे बताया है वो एक महंगाई भी है, और इसी के साथ साथ महंगाई को उनने मुख्य इसके पीछे एक मेन पॉइंट के तरह रखा है। तो क्या जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की, उनमें भी हम जो वर्कर्स हैं उनकी छटनी जैसा कुछ देखेंगे कि एम्प्लॉयज को रिमूव किया जाएगा, या फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला? आपने अगर न्यूज ये पढ़ी है तो आपने एक न्यूज और भी पढ़नी चाहिए थी कि अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी, हमारी माननीय मंत्री जी हैं, वो इन सब चीजों पे बहुत अच्छे से विचार कर रही हैं। और रिसेंटली अभी ये एक अनाउंसमेंट हुआ था कि सबकी जो सारी इंडस्ट्री अपने यहाँ वैकेंसी ओपन करें। तो अभी वैकेंसी हमारे इवन जैसे मेरी इंडस्ट्री है उसमें भी अभी वैकेंसी ओपन की जा रही है। हर इंडस्ट्री अपने यहाँ वैकेंसी ओपन कर रही है। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पे लोगों को हायर किया जा रहा है, अभी मैन पावर बढ़ाया जा रहा है क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज के पास अभी काम बहुत है। ये अच्छी एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि पहले के मुकाबले उन इंडस्ट्रीज के पास काम बढ़ा है, ना कि कम हुआ है। और इसके कारण लोगों की आवश्यकता बढ़ रही है और अभी वैकेंसी भी निकाली जा रही है। और टेस्ला की बात है, जो प्राइवेट कंपनीज है, तो मैं जो बता रही हूँ कि जैसे अमेरिका की आपने बात की, ऐसी कहीं ना कहीं उनकी जो और ग्लोबली उनके जो काम है और कॉन्टेक्ट है, तो वहाँ उनको बड़ी कंपनीज को लॉसेस हुए हैं और उसके कारण उनका इंटरनल मामला है कि इसलिए वो निकाल रहे हैं। महंगाई भी एक रीजन है और आजकल वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो वो भी उन लोग को इजी हो रहा है कि वो लोग कम पेमेंट पे लोगों को हायर कर पा रहे हैं। क्योंकि एक रास्ता उनको ये मिल गया, कोविड ने उन लोगों को ये एक रास्ता और दे दिया, ऐसा भी किया जा सकता है। तो मोड ऑफ जो सर्विसेज है वो चेंज हुए, तो वो भी एक कारण है। महंगाई एक कारण नहीं है, वो भी एक कारण है। और जब हम बात करते हैं आर्मी की,
तो जो आर्मी फोर्सेस एनरोल की जाती थी, जो कि एक बहुत एक काफ़ी आई थिंक जब से आज़ाद हिंद फौज की जब से नींव रखी गई, तब से जो आर्मी के जो कैडेट होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो जॉब का टाइम स्पैन होता है वो पहले से ही अराउंड 20 इयर्स, मे बी 15 to 20 इयर्स रखा जाता है, जो नॉर्मल टाइम फॉल था। अब हम देखते हैं कि ये एकदम से बहुत कम किया गया है बाय 4 इयर्स, सिर्फ 4 साल। तो ऐसे में जब हम अभी न्यूज़ देखते हैं या फिर लोगों को सुनते हैं, तो लोग इससे खुश नहीं हैं और वो अपना गुस्सा प्रदर्शित कर रहे हैं दंगों के रूप में। काफ़ी बड़े नुकसान अभी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को हुए इन टर्म्स ऑफ जब रेल जलाई गई, पटरियाँ उखाड़ी गईं एंड डेफिनेटली कई और तोड़-फोड़ की गई ऐसी, जिससे ये एक भारी नुकसान जिससे देश को झेलना पड़ा है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं इस पर? आप एक्चुअली आप अस्सी पत्तों और अस्सी मील की बात कर रहे हैं, है ना? ये दुर्भाग्य है उन सारे नौजवानों का कि कोई अच्छी चीज जब आती है तो वो अपने विवेक से, आप भी यंग हो, आप इतनी अच्छी सोच रखते हो और ऐसी सोच की ईश्वर ने सभी युवाओं को दी है, तो बजाय किसी के कहने पर खुद भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सोचें कि जो सामने हमारे रखा गया है वो कितना सही है और कितना गलत है। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट का टूर करके आई हूँ। मुझे रास्ते में एक युवा मिला ट्रेन में, खुद ही आके उसने मुझसे इंटरेक्शन शुरू किया। मुझे देख के पूछा कि आप टीचर लगते हो, आप टीचर हो क्या? मैंने कहा मैं टीचर रही हूँ, मतलब टीचर। तो वो शायद बात करना चाह रहा था। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, कैसे क्या? तो उसने बताया कि मैं अभी पंजाब जा रहा हूँ और फिर उसने अपना बताया कि उसके फादर आर्मी में है, उसके बड़े भाई सीआरपीएफ में है और वहाँ पर अभी भर्ती होने वाली है। तो मैं जा रहा हूँ, मैं पिछले 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैम क्या है कि 2 साल से कोरोना की वजह से कुछ भर्तियाँ हो नहीं रही हैं। मैं फिट एंड फाइन, मतलब मेरा ओके हो जाता है, लेकिन भर्ती हो नहीं रही है और अगले साल तो मैं वो भी हो जाऊंगा, ओवर एज हो जाऊंगा। अच्छा लड़का था, मैं आज उसकी पोस्ट भी डालने वाली थी। तो मैंने उससे कहा कि अगर 2 साल से तुम इंतजार कर रही थी, तुम कुछ और क्यों नहीं कर सकते थे? तुम क्वालिफाइड हो, पढ़े लिखे हो। बोला नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ देश की सेवा करनी है, मुझे और कोई काम करना ही नहीं। तो देखिए उसका जुनून था, तो उसको सिर्फ देश की सेवा ही करनी है। ये जो वैकेंसी निकाली है और जो योजना निकाली है, ये ऐसा तो है नहीं कि पूरे भारत के सारे युवाओं के लिए सिर्फ एक योजना है, अगर कुछ काम की जा सकती। ये ऑप्शन है उनके लिए जिनको इसकी सेवा करनी है या इस फील्ड में जाना, तो उनको जाना चाहिए था। और इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया है कि मैं बनाने वाले की को धन्यवाद देना चाहूंगी कि हर चीज को बड़े अच्छे से बना दिया। वो ये आप देखिए बहुत टाइम पहले से एनसीसी के लिए, एनसीसी बीच में बिल्कुल खत्म जैसी हो गई, उसके लिए बार बार बात हुई थी। आजाद फौज के टाइम की आपने अभी नाम लिया, उस टाइम पर भी जब हमारा 62 का वॉर हुआ था, 55 का वॉर हुआ था, 65 का वॉर हुआ था, तब पूरी भारत में ये बात हुई थी कि स्कूल में बच्चों को छोटी छोटी ट्रेनिंग दी जाए, ये हमारी सेफ्टी के लिए जरूरी थी। और खास तौर पे जो बॉर्डर एरिया है, जैसे अरुणाचल, असम और बिहार का एरिया, ऐसे कश्मीर का एरिया, ऐसे जगहों पे स्पेशली ये बात होती थी कि स्कूल में बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाए। तो ये कोई जॉब देने वाली बात नहीं है, इसमें भी आप देखिए जो डिजाइन किया है वो वही है कि जो कोई युवा जो और कोई काम में नहीं जाना चाहता या उसको खुद फिट एंड फाइन रहने का, आजकल जिम में आप जाके पैसे खर्च करते हो, आपको फ्री में वो सर्विसेज मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है, प्लस आपको सैलरी भी दे रही है और प्लस आपको डिपॉजिट भी दे रही है। तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है? अब रहा सवाल 4 साल का, ठीक है, आप ये समझ लो कि जैसे आपने बीए किया, एमए किया, उसमें भी आप 4-5 साल दोगे ना, तो वो 4 साल के बाद आप इतने ट्रेंड होके निकलेंगे कि जो
मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ऐसे लोगों को सबसे पहले ऑफर देते थे। वो अपने यहाँ चौकीदार का ऑफर नहीं देते, वो अपने मैनेजमेंट का भी ऑफर देते हैं, क्योंकि उनको डिसिप्लिन चाहिए होता है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप 4 साल के बाद भी वहाँ जाके कर सकते हैं। तब तक आपकी उम्र भी उतनी हो जाएगी कि आप कामों को समझ सके, और आपकी ट्रेनिंग वो वाली ट्रेनिंग कि आप जॉब भी करके आए हो, और कल हमारे देश में अगर किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है, कोई इस तरह का घटना दुर्घटना होती है, तो हमारा एक एक बच्चा ट्रेंड है। हमारा बच्चा अपनी बॉर्डर छोड़िए, अपनी हिफाजत तो करना चाहता है, वो अपने को तो सेव कर पाएगा ना, कम से कम अपनी फैमिली को तो प्रोटेक्ट कर पाएगा। उसकी ट्रेनिंग उसका काम देगी कि नहीं देगी। तो ये सब उन बच्चों को सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, ये सब प्रायोजित लोग हैं, मुझे नहीं लगता। हाँ, उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहकावे में आ गए होंगे, तो मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह की बातों के लिए आप अपना समय जाया न करें। या मंडे से ट्रेनिंग का मतलब प्रोसीजर शुरू हो जाएगा उसका, उसमें जाए, इसको ऑप्शन मिल रहा है। और एक चीज और भी की, जब आगे पता चला तो उसमें एज बढ़ा के 23 साल कर दी गई है। अगर 2 साल भर्ती नहीं हुई तो 23 साल की एज में आप कवर तो कर ही रहे हो, आपको तो मौका मिलेगा ही। तो जब इतना अच्छे से ऑप्शन दिया जा रहा है, आपकी सुनी जा रही है, तो फिर ये तोड़-फोड़ क्यों? और मैंने कल ट्वीट भी किया था, मैंने माननीय प्रधानमंत्री को ही ट्वीट किया था, जिन लोगों ने बच्चों ने, जब जो युवा है, वो युवा तो नहीं लग रहे हैं, अच्छे बड़े बड़े लग रहे हैं, जिन्होंने भी ऐसी तोड़-फोड़ की है, यानी कि उन्हें अपने देश से प्रेम नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने देश की संपत्ति से प्रेम नहीं है, वो इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारे देश की रक्षा करने के लिए कैसे जा सकते हैं? ऐसे लोगों को उसमें भर्ती प्रक्रिया में नहीं लिया जाए, ये होना चाहिए। क्योंकि उसमें सबसे पहले उसूल ये था कि देश पहले। अगर आप देश को ही नुकसान पहुंचा रहे हो तो आप कैसे सैनिक बन सकते हैं? आपको तो कोई राइट ही नहीं है। फिर हम उनको दिए ना मौका, जिनको जो ऐसे जो वो युवा मिला ट्रेन में, जिस दूसरे ऑप्शन में जाना ही नहीं चाहता, उसमें उसका एक ही एजेंडा है कि देश की सेवा। जो कुछ सीन है वो क्रिएट किया हुआ है, वो जो दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम बहुत संपन्नता के साथ रह रहे हैं। हाँ, ये है कि कोई चीज की महंगाई जो 2 रुपए में आती थी, आज ये कह सकते 4 रुपए में आ रही है, लेकिन हम खरीद नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं कोई बड़े लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। हम भी एक सामान्य साधारण व्यक्ति हैं, हम भी जी पा रहे हैं, अच्छे से जी पा रहे हैं। तो हमारा अगर कोई चीज के लिए हमारा जब स्तर उठता है, जब हम उसको ठीक करते हैं, हमारा विकास होता है, तो हमारी लाइफस्टाइल भी बदलती है। हम फिर पुराने तरीके से नहीं रह सकते, उसी तरीके से नहीं चल सकते। तो स्वाभाविक है कि भारत ने भी इसके लिए पूर्व तैयारी की हुई। अमेरिका की जो मंदी है उसका प्रभाव एक आईटी सेक्टर पे भी पड़ा कि आईटी जो है सबसे ज्यादा भारतीय लोग उसमें इन्वॉल्व है। काफी सारी कंपनीज है जो जिनके ऊपर उनका असर पड़ने वाला है। और साथ में जैसे जो प्रोडक्ट वहां आते हैं या जो कंपनी वहां इन्वेस्ट करने का या इन फ्यूचर में वहां कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे होंगे, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो इतना कोप अप नहीं कर पाएंगे ना उसके अनुसार। तो स्वाभाविक है कि वो कंपनी भी अब इन्वेस्ट करने के लिए वहां जाने की बजाय हमारे भारत में ही मार्केट है। तो हमारे लिए तो कहीं से भी नुकसान नहीं है, भारत के लिए तो कहीं से भी नुकसान नहीं है। जो भी उसका असर आएगा वो बहुत अच्छा होगा। बस जरूरत है कि आप हमारे देश के युवाओं को, लोगों को, नागरिकों को उस बात को अच्छे से समझें और ना क्रिटिसाइज करें, बल्कि काम करें, उसके लिए योजना बनाएं, उसके लिए प्लानिंग करें, अपना मैनेजमेंट बनाएं। तो इसकी आवश्यकता ज्यादा है। और जब हमारा देश विकास करेगा, देश का नाम वर्ल्ड में अगर फेमस होगा, तो कॉलर बड़ी होती है। इस चीज का लोग क्यों नहीं सोचते? मुझे ये बात कभी समझ नहीं आती कि वो अपने ही देश को नीचे खींचने की और उसको उसके नाम को खराब करने की कोशिशें क्यों करते हैं? तो तैयारियां हैं और हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम उस तैयारी में शामिल हों, उन समस्याओं के सुधार के लिए काम करें और उसके विकास के लिए अपना योगदान दें। एक और न्यूज़ जो कि अभी ट्रेंडिंग पर है,
which is जो टेस्ला कंपनी है, one of the very renowned international company. टेस्ला के अभी डायरेक्टर ने, मे बी द मैनेजिंग डायरेक्टर, उनने अभी अनाउंस किया है कि वो 10% जो उनकी जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें बाहर करेंगे। तो क्या ये हम क्यों और उन्हें जो रीज़न इसके पीछे बताया है वो एक महंगाई भी है, और इसी के साथ-साथ महंगाई को उन्होंने मुख्य इसके पीछे एक मेन पॉइंट के तरह रखा है। तो क्या जो हेवी इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया की, उनमें भी हम जो वर्कर्स हैं उनकी छँटनी जैसा कुछ देखेंगे कि एम्प्लॉइज़ को रिमूव किया जाएगा, या फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला? आपने अगर न्यूज ये पढ़ी है तो आपने एक न्यूज और भी पढ़नी चाहिए थी कि अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी, हमारी माननीय मंत्री जी हैं, वो इन सब चीजों पे बहुत अच्छे से विचार कर रही हैं। और रिसेंटली अभी ये एक अनाउंसमेंट हुआ था कि सबकी जो सारी इंडस्ट्री अपने यहाँ वैकेंसी ओपन करें। तो अभी वैकेंसी हमारे इवन जैसे मेरी इंडस्ट्री है उसमें भी अभी वैकेंसी ओपन की जा रही है। हर इंडस्ट्री अपने यहाँ वैकेंसी ओपन कर रही है। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पे लोगों को हायर किया जा रहा है, अभी मैन पावर बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज के पास अभी काम बहुत है। ये अच्छी एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि पहले के मुकाबले उन इंडस्ट्रीज के पास काम बढ़ा है, ना कि कम हुआ है, और इसके कारण लोगों की आवश्यकता बढ़ रही है और अभी वैकेंसी भी निकाली जा रही है। और लास्ट टेस्ला की बात है, जो प्राइवेट कंपनीज है, तो मैं जो बता रही हूँ कि जैसे अमेरिका की आपने बात की, ऐसी कहीं ना कहीं उनकी जो और ग्लोबली उनके जो काम है और कॉन्टेक्ट है, तो वहाँ उनको बड़ी कंपनीज को लॉसेस हुए हैं, और उसके कारण उन्होंने उनका इंटरनल मामला है कि इसलिए वो निकाल रहे हैं। महंगाई भी एक रीजन है, और आजकल वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो वो भी उन लोग को इजी हो रहा है कि वो लोग कम पेमेंट पे लोगों को हायर कर पा रहे हैं। क्योंकि एक रास्ता उनको ये मिल गया, कोविड ने उन लोगों को ये एक रास्ता और दे दिया, ऐसा भी किया जा सकता है। तो मोड ऑफ जो सर्विसेज है वो चेंज हुए, तो वो भी एक कारण है। महंगाई एक कारण नहीं है, वो भी एक कारण है। और जब हम बात करते हैं आर्मी की, तो जो आर्मी फोर्सेस एनरोल की जाती थी, जो कि एक बहुत एक काफ़ी, आई थिंक जब से आज़ाद हिंद फौज की जब से नींव रखी गई, तब से जो आर्मी के जो कैडेट होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो जॉब का टाइम स्पैन होता है वो पहले से ही अराउंड 20 ईयर्स, मे बी 15 to 20 ईयर्स रखा जाता है, जो नॉर्मल टाइम फॉल था। अब हम देखते हैं कि ये एकदम से बहुत कम किया गया है बाय 4 ईयर्स, सिर्फ 4 साल। तो ऐसे में जब हम अभी न्यूज़ देखते हैं या फिर लोगों को सुनते हैं, तो लोग इससे खुश नहीं हैं, और वो अपना गुस्सा प्रदर्शित कर रहे हैं दंगों के रूप में। काफ़ी बड़े नुकसान अभी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को हुए इन टर्म्स ऑफ, जब रेल जलाई गई, पटरियाँ उखाड़ी गई, एंड डेफिनेटली कई और तोड़-फोड़ की गई ऐसी, जिससे ये एक भारी नुकसान जिससे देश को झेलना पड़ा है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? आप एक्चुअली आप अति पद और अति वीर की बात कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है उन सारे नौजवानों का कि कोई अच्छी चीज जब आती है तो वो अपने विवेक से, आप भी यंग हो, आप भी अच्छे सोच रखते हो, और ऐसी सोच की ईश्वर ने सभी युवाओं को दी है, तो बजाय किसी के कहने पर खुद भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सोचें कि जो सामने हमारे रखा गया है वो कितना सही और कितना गलत है। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट का टूर करके आई हूँ, मुझे रास्ते में एक युवा मिला ट्रेन में, खुद ही आके उसने मुझसे इंटरेक्शन शुरू किया, मुझे देख के पूछा कि आप टीचर लगते हो, आप टीचर हो क्या?
मैंने कहा मैं टीचर रही हूँ बहुत लंबे टीचर, तो वो शायद बात करना चाह रहा था। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो कैसे क्या, तो उसने बताया कि मैं अभी पंजाब जा रहा हूँ और फिर उसने अपना बताया कि उसके फादर आर्मी में है, उसके बड़े भाई सीआरपीएफ में है और वहां पर अभी भर्ती होने वाली है, तो मैं जा रहा हूँ। मैं पिछले 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैम क्या है कि 2 साल से कोरोना की वजह से कुछ भर्तियां हो नहीं रही है। मैं फिट एंड फाइन मतलब मेरा ओके हो जाता है, लेकिन भर्ती हो नहीं रही है और अगले साल तो मैं वो भी हो जाऊंगा, ओवर एज हो जाऊंगा। अच्छा लड़का था, मैं आज उसकी पोस्ट भी डालने वाली थी। तो मैंने उससे कहा कि अगर 2 साल से तुम इंतजार कर रही थी, तुम कुछ और क्यों नहीं कर सकते थे, तुम क्वालिफाइड हो, पढ़े लिखे हो। बोला नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ देश की सेवा करनी है, मुझे और कोई काम करना ही नहीं। तो देखिए उसका जुनून था, उसको सिर्फ देश की सेवा ही करनी है। ये जो वैकेंसी निकाली है और जो योजना निकाली है, ये ऐसा तो है नहीं कि पूरे भारत के सारे युवाओं के लिए सिर्फ एक योजना है, अगर कोई काम की जा सकती। ये ऑप्शन है उनके लिए जिनको देश की सेवा करनी है या इस फील्ड में जाना, तो उनको जाना चाहिए था। और इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया है कि मैं बनाने वाले की को धन्यवाद देना चाहूंगी कि हर चीज को बड़े अच्छे से प्लान। वो ये आप देखिए बहुत टाइम पहले से एनसीसी के लिए, एनसीसी बीच में बिल्कुल खत्म जैसी हो गई, उसके लिए बार बार बात हुई थी। आजाद फौज के टाइम की आपने अभी नाम लिया, उस टाइम पर भी जब हमारा 62 का वॉर हुआ था, 55 का वॉर हुआ था, 65 का वॉर हुआ था, तब भी भारत में ये बात हुई थी कि स्कूल में बच्चों को छोटी छोटी ट्रेनिंग दी जाए। ये हमारी सेफ्टी के लिए जरूरी थी। और खास तौर पे जो बॉर्डर एरिया है जैसे अरुणाचल, असम और बिहार का एरिया, ऐसे कश्मीर का एरिया, ऐसे जगहों पे स्पेशली ये बात होती थी कि स्कूल में बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाए। तो ये कोई जॉब देने वाली बात नहीं है, इसमें भी आप देखिए जो डिजाइन किया वो वही है कि जो कोई युवा जो और कोई काम में नहीं जाना चाहता या उसको खुद फिट एंड फाइन रहने का, आजकल जिम में आप जाके पैसे खर्च करते हो, आपको फ्री में वो सर्विसेज मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है, प्लस आपको सैलरी भी दे रही है और प्लस आपको डिपॉजिट भी दे रही है। तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है। अब रहा सवाल 4 साल का, ठीक है, आप ये समझ लो कि जैसे आपने बीए किया, एमए किया, उसमें भी आप 4-5 साल दोगे ना, तो वो 4 साल के बाद आप इतने ट्रेंड होके निकलेंगे कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ऐसे लोगों को सबसे पहले ऑफर देते हैं। वो अपने यहाँ चौकीदार का ऑफर नहीं देती, वो अपने मैनेजमेंट का भी ऑफर देती है, क्योंकि उनको डिसिप्लिन चाहिए होता है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप 4 साल के बाद भी वहाँ जाके कर सकते हैं। तब तक आपकी उम्र भी उतनी हो जाएगी कि आप कामों को समझ सके। और आपकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग वो वाली ट्रेनिंग कि आप जॉब भी करके आए हो और कल हमारे देश में अगर किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है, कोई इस तरह का घटना दुर्घटना होती है, तो हमारा एक एक बच्चा ट्रेंड है। हमारा बच्चा अपनी बॉर्डर छोड़िए, अपनी हिफाजत तो करना जानता है। वो अपने को तो सेव कर पाएगा ना, कम से कम अपनी फैमिली को तो प्रोटेक्ट कर पाएगा। उसकी ट्रेनिंग उसका काम देगी कि नहीं देगी। तो ये सब उन बच्चों को सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ जिन्होंने तोड़ फोड़ की है ये सब प्रायोजित लोग हैं, मुझे नहीं लगता। हाँ, उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहकावे में आ गए होंगे, तो मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह की बातों के लिए आप अपना समय जाया न करें। भर्तियां मंडे से ट्रेनिंग का मतलब प्रोसीजर शुरू हो जाएगा उसका, उसमें जाए जिसको ऑप्शन मिल रहा है। और एक चीज और भी की, जब आगे पता चला तो उसमें एज बढ़ा के 23 साल कर दी गई है। अगर 2 साल भर्ती नहीं हुई तो 23 साल की एज में आप कवर तो कर ही रहे हो, आपको तो मौका मिलेगा ही। तो जब इतना अच्छे से ऑप्शन दिया जा रहा है, आपकी सुनी जा रही है, तो फिर ये तोड़ फोड़ क्यों। और मैंने कल ट्वीट भी किया था, मैंने माननीय प्रधानमंत्री को ही ट्वीट किया था, जिन लोगों ने बच्चों ने जो युवा है, वो युवा तो नहीं लग रहे हैं, अच्छे बड़े बड़े लग रहे हैं, जिन्होंने भी ऐसी तोड़ फोड़ की है, यानी कि उन्हें अपने देश से प्रेम नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने देश की संपत्ति से प्रेम नहीं है, वो इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये हमारे देश की रक्षा करने के लिए कैसे जा सकते हैं। ऐसे लोगों को उसमें भर्ती प्रक्रिया में नहीं लिया जाए, ये होना चाहिए। क्योंकि
उसमें सबसे पहले उसूल ये था कि देश पहले। अगर आप देश को ही नुकसान पहुंचा रहे हो तो आप कैसे सैनिक बन सकते हैं? आपको तो कोई राइट ही नहीं है। फिर हम उनको दिए ना मौका, जिनको जो ऐसे जो वो युवा ट्रेन में जिस दूसरे ऑप्शन में जाना ही नहीं चाहते, उसमें उसका एक ही एजेंडा है कि देश की सेवा। एक और सवाल है विच इज, अगर आज आप लोगों को देख जो नॉर्मली जो मैंने महसूस किया काफ़ी लोगों में, अगर हम सिर्फ ऐसा नहीं है मैंने महसूस किया, एक बड़े स्तर पर लोग ये महसूस कर रहे हैं हिंदुस्तान में कि जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज जो वाकई एक बड़ी, जैसा कि नाम है हैवी इंडस्ट्रीज, जो हैवी हैवी काम वहाँ पर होता है, अब हम देखते हैं और लोग ये कहते हैं कि अब पिछले कुछ सालों में इन कामों में बहुत गिरावट आई है। कंपनीज उस हद पे आ गई हैं जहां उन्हें बेचने की आपकी आवाज आपका ब्रेक हो गया। जी। तो अब ऐसा लोगों का मानना और कहना है कि अब गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, कई ऐसी इंडस्ट्रीज पिछले सालों में बंद की गई, कई और ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो उस कगार पर हैं कि उन्हें प्राइवेट किया जाना है। और बीएसएनएल या फिर जो एयर इंडिया जो पहले गवर्नमेंट के अंडर में थी, ये सब अब उस एक सर्कल के उस बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं जब इन्हें कभी भी प्राइवेट, जो एयर इंडिया है वो तो प्राइवेट कर दी गई है विच इज अंदर टाटा, और बीएसएनएल भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अब बीएसएनएल को कहीं देखा नहीं जाता। बीएसएनएल का क्रेज और फेम अब बहुत तेजी से कम हुआ है, यानी 10 में से 1% लोगों के पास, आउट ऑफ 10 देयर इज 1 हु यूज अ बीएसएनएल सिम। तो इन चीज़ों पर आपकी क्या राय है, आप क्या विचार इन पर रखना चाहेंगे? देखिए, भारी उद्योग जिसमें भारी भारी उद्योग आते हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, और अगर हम शुरू से बात करें, हमारे देश आज़ादी से पहले की बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सरकार जो बनी के सामने ये सब बातें थी कि हम अपने देश की तरक्की कैसे करें, क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए था। तो उन्होंने एक पंचवर्षीय योजना एक प्लान किया और उसके तहत अपना जो बजट था उसको अलॉट करना शुरू किया। पहली पंचवर्षीय योजना में तो एग्रीकल्चर और बेसिक जो चीजें थी उस पर उन्होंने ध्यान दिया। सेकेंड, जब वो पंचवर्षीय योजना जब आई 1956 में, तो उसमें भारी उद्योगों को लगाने की का प्रावधान रखा गया। उस समय पहली बार भारी उद्योग जो थे वो सेकेंड पंचवर्षीय योजनाओं में आए और कालांतर में कई सारे कंट्री के साथ मिलके बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, जिसमें जर्मनी था, रशिया था, ऐसे उनके साथ मिलके, जैसे राउरकेला हो गया आपका, बंगाल में हुआ, में ऐसे कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए गए। ठीक है, उसके पीछे पर्पज सिर्फ ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, हमारे देश की तरक्की हो, हमारी एग्रीकल्चर थोड़ी डेवलप हो। तो ये सब चीजों को लेके चला, लेकिन जब हम कोई भी काम एक हम प्राइवेट तौर पर भी देखें, या अगर हम कोई छोटी अपनी भी कोई छोटी सी यूनिट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, सारा उसका मैनेजमेंट पहले तैयार करते हैं, उसका बजट हमारा रहता है, डेली एक्सपेंसेस का बजट रहता है, पूरा एक प्लानिंग रहती है, प्रॉपर प्लानिंग रहती है कि हमारा चला तो हमारा क्या रहेगा, चलने लगा तो हम आगे फर्दर और उसमें क्या डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन जब ये सरकारी बड़े प्रोजेक्ट आए, सरकार ने लगाए, लेकिन इनकी जो एक प्लानिंग होती थी वो कहीं ना कहीं ब्रेक गई और प्रॉपर उनकी देखभाल नहीं हुई, प्रॉपर उनको उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचा नहीं गया। तो
उसका परिणाम ये हुआ कि वो धीरे धीरे लगे भी और धीरे धीरे वो समाप्त भी होते चले गए। 2017 तक लास्ट पंचवर्षीय योजना चली, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया और उसके बाद ये सब व्यवस्थाएं नीति आयोग के अंतर्गत दे दी गई। वैसे भी बताना चाहूंगी कि जैसे आपने बीएसएनएल का टाइम की बात, मैं असम में जब हम बचपन में छोटे थे तब हमारे भी वो जो शहर था, शहर क्या कस्बा जैसा शहर था, वो छोटी जगह, तो उस समय पर 80 में हमारे यहाँ भी एक बड़ा प्रोजेक्ट आया था पेपर बनाने का। और ये सब जो ऐसा है कि उसके बाद हमारे उस टाउनशिप में कोई घर ऐसा नहीं था कि जिसमें एक व्यक्ति उस कंपनी में काम करता था। पूरा जटागी रोड जो शहर हमारा छोटा जगह थी, वो छोटा था लेकिन हर घर उत्पन्न था, हर घर में चूल्हा जलता था, लोग खुश थे। तो काम का इतना रहता था कि हमारी जगह में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो लोगों का विकास हुआ। लेकिन देखते देखते उसके जो मैनेजमेंट के लोग थे और जो भी केयर लोग थे, उसके तो आलिशान बड़े बड़े मकान बन गए। हमारे घर के पीछे उनके मकान बने हुए, लेकिन जो पेपर मिल बंद हो गया और उसकी इतनी दूर दूर तक जमीन आज भी पड़ी हुई है, पेपर मिल अभी उसको ऑप्शन में डाला गया है। तो ये वाला बहुत जगह पर है। अब आज की जो पॉलिसी की अगर हम बात करें, आज जो है वो उसमें ये सब चीजों की सरकार ने बहुत विचार किया कि जो इस तरह की कंपनी है जो सर्वाइव नहीं कर पा रही है या उसका कुछ आउटपुट ठीक से नहीं आ रहा है, उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या उसको आगे चलाया जा सकता है, ये सब भी चल रहा है, एनालिसिस हो रही है। लेकिन जो कंपनी अच्छी है या जो चला सकते हैं उनके लिए, जो आत्मनिर्भर है उनके लिए सरकार ने अभी हम सभी इंडस्ट्रीज वालों गाइडलाइन दी जिसको आगे कैसे बढ़े। मेरी भी जो इंडस्ट्री है वो पूर्णतः 100% आत्मनिर्भर है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी कोई लोड नहीं है, कोई लॉस नहीं है, सब कुछ अच्छा है। तो हम लोग भी बस प्लान करते हैं कि अभी इसको और आगे अच्छे कैसे लेके जाना है, सरकार की जो और योजनाएं उनके साथ कैसे काम करना है, तो इन पे विचार होता है। तो जितने हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए जस्ट लाइक चौकीदार, हम लोग सब चीजों पे विचार करते हैं और देश को कहाँ विकास में ले जाना है, वो सारे मुद्दों पर, सारे विषयों में हम लोग विचार करते हैं। तो वो सारी इंडस्ट्री जो बंद हुई है वो उनके उस समय की सरकारों की उदासीनता का परिणाम था। और आज की हमारी जो सरकार है वो हमें ही सामने से नहीं रखती, हमारे सामने इतने लक्ष्य रखे हैं, तो जो आने वाले समय में आपको भी देखना। आज आपसे बातचीत के दौरान हमने कई अलग अलग तरह के प्रश्न रखे और अब जब सेशन अपने चरम पर है तो मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हर एक सवाल का जिस तरीके से आपने जवाब दिया, चाहे वो गैर सरकारी एस्पेक्ट्स हों या सरकार से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स हों, जितनी बखूबी मुझे उम्मीद नहीं थी वाकई जिस तरीके से आपने मुझसे पहले कहा था कि ऐश्वर्य इंडस्ट्रीज हम उतनी ही डिस्कस करेंगे जितनी ज़रूरी होगी, बट बहुत बखूबी आई एम ग्लैड दैट रियली बहुत एक परफेक्शनलिस्ट हैं आप, और डेफिनेटली आई विश कि यू विल हैव अ लॉन्ग लाइफ और जितनी आप लंबी ज़िंदगी जिएं, अच्छी ज़िंदगी जिएं और जैसे आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं ऐसे ही मुस्कुराते रहें। With the last question, what is the reason behind this beauty? We can see on this screen. क्या हेल्थ टिप्स आप कुछ अगर शेयर करना चाहें? योगा में आपका खास इन्वॉल्वमेंट रहा, कुछ योगा के बारे में आप प्लीज मेंशन करें, और जो आज की जनरेशन है वो कैसे अपने आप को हाउ दे कैन स्टे हेल्दी एंड फिट।
तो जो ये कोरोना जैसी बीमारियां हैं, ये इनने वैसे भी हिंदुस्तान को बहुत कम स्टक किया, क्योंकि वी हैव पीपल लाइक यू हु आर इन्वॉल्व इन योगा, द थिंग्स लाइक योगा। लेकिन और कैसे हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं? जैसा कि आप हमेशा योगा को बहुत प्रमोट करती आई हैं, आज भी आपका योगा पर काफी काम है, और आगे और लोग इसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इस पे एक ब्रीफ आंसर। हाँ ऐश्वर्या, मैं इस बात को मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि पूरे कोरोना टाइम में जब भारत लॉकडाउन में रहा है, खाली वो मंथ कोई भी ऐसा महीना नहीं गया जिस समय मैंने बाइक ना पकड़ी, मतलब मैंने जर्नी ना की हो। मैं रेगुलर जर्नी करती रही, क्योंकि आप देखते हो मेरा घर इधर है, बच्चे वहाँ मुंबई है, तो इधर उधर जाना, फिर काम से जाना, तो चलता रहा। तो रेगुलर जर्नी रही, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि मुझे कभी कोरोना नहीं हुआ। मुझे ना बच्चे हुआ ना मेरी फैमिली में किसी को हुआ। तो ये शायद उसी का एक कारण हो सकता है। और कोरोना टाइम में हमने बहुत सारी मुहिम भी चला रखी थी, लोगों को काउंसलिंग करने के लिए, टिप्स देने के लिए सेशन भी चला रखे थे। तो विंडो व्यक्ति डेली सेशन में भी देती थी। योग की अगर आपके पास समय हो तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है योग। जब मैं वनस्थली विद्यापीठ में थी 1996 में, उस टाइम पर कहती ना कि थोड़ा सा अच्छे दिन आ गए। मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, सैलरी बहुत अच्छी थी, और रिस्पेक्टफुल मेरी सीधी जॉब थी, और सारे नौकर चाकर क्वार्टर वाटर सब कुछ था मेरे पास, ठीक है। तो जब अच्छा हो जाता है तो फिर क्या होता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना मन लगाता है। तो हमारी पास में सामने लाइब्रेरी थी, मैं वहां जाके अक्सर पढ़ाया करती थी, पढ़ने की आदत बहुत बुरी है, तो पढ़ा करती थी। तो उस समय पर मेरे हाथों में वेद सारे पुराण स्मृति ये इतनी अच्छे से उस समय मेरी रीडिंग में आई, तो मेरे अंदर क्वेश्चन आ गया कि ये मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या जीवन यही है? मतलब हमको इसी तरह जीना है, हम जीवन ऐसे ही जीते हैं क्या? इतने सारे क्वेश्चन मेरे अपने अंदर आने लगे। तो वो चीज ने मुझे डाइवर्ट कर दिया योग की तरफ, और मैं फिर बैंगलोर चली गई, और वहां जाके मैंने फिर अपने कोर्स को ज्वाइन किया। हो गया। अच्छा, तो उस समय वो तो मिली नहीं, तो फिर मैंने जॉब रिजाइन किया, और उसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई योग में वापस जाने की। और उसके बाद फिर मैंने योग को ही अपनी लाइफ में एज ए प्रोफेशन और अपनी लाइफ में उसको अपनाया। वापस भोपाल आए, भोपाल आके हमने प्रैक्टिस की, योग चिकित्सा में करती थी। बहुत सारे लोग आते थे, पूरा दिन मेरा इसी में ही जाता था। डॉक्टर्स रेफर करते थे पेशेंट को, तो दिन भर हमारे बैचेज ही चलते रहते थे। तो डबल फायदा होता था मेरा कि एक आत्मा संतुष्टि भी, और दूसरा मेरी अर्निंग भी अच्छी। तो ये सब काम करती हूँ। इस बीच में मेरा जो खासतौर पे मैंने जो काम किया मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ऊपर, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए उस टाइम पर। उस टाइम के क्या, अभी भी उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो इस तरह से मुझे अच्छा काम करने को मिला। फिर धीरे धीरे करके काफी सारे डायबिटीज पे और किसी पे प्रोजेक्ट आए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, आयुष के साथ मिलकर मैंने किए अपने गुरु जी के मार्गदर्शन में। तो ये जो चीजें थी जो योग की तरफ मुझे डाइवर्ट किया, ये मेरी उस सोच ने किया। और फिर मैंने हमेशा इस चीज को खुद भी अपनी लाइफ में महसूस किया कि उस विधा ने मुझे हर कदम पर मुझे बचा के रखा। ना तो मेरे अंदर डिप्रेशन आने दिया, ना मुझे एकदम से हताश निराश होने दिया, और काम करने की दुगनी क्षमता। कई बार लोग कहते ना आप ये मल्टीटास्किंग कैसे कर लेते, तो ये उसी की देन है, ये मेरी अपनी देन है, ये उसी की देन है। तो उसने मुझे इतना परिपक्व कर दिया कि मैं एक बार में एक काम को बहुत अच्छे से कर लेती, तो दूसरा भी कर पाती, ऐसा रहता है। तो ये
योग कोई साधारण विधा नहीं है, ये प्रकृति द्वारा मनुष्य के शरीर को अच्छे से स्वस्थ रखने के लिए एक पूरा ईश्वर ने दी हुई एक विधा है। इसको व्यक्ति को वैसे ही अपनाना चाहिए, जैसे वो अपनी नियमित दिनचर्या में खाना पीना सोना करता है, वैसे ही उसको भी करना चाहिए। अगर वो ये नियमित अभ्यास और नियमित अपना योग प्राणायाम ध्यान करता है, इसलिए हम धार्मिक नहीं हो जाते। ये हमारी शरीर के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ, मानसिक स्तर को स्वस्थ रखने के लिए ये तरीका है। तो अगर इसको करते हैं तो हमारा अपना विकास होता है, किसी और का, हम अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो इसको युवाओं को, बच्चों को, महिलाओं को, सबको अपनाना चाहिए। मैं कई बार जब लोगों से मिलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो लोग ऐसी छोटी छोटी बातों पे डिस्कस कर रहे होते हैं। यानी मेरा हाथ पीछे नहीं मुड़ के जाता, कई बार कहते हैं मेरे गर्दन में बहुत चाव रहता है। तो मुझे हंसी आती है उनकी बातें सुन के, बोल तो पाती नहीं हूँ, लेकिन ये इतनी छोटी चीजें हैं, इतनी छोटी चीजें हैं। जैसे अगर कोर्स की बात करें तो नर्सरी समझ, इतनी छोटी चीजें हैं कि जिसको अगर वो 10-15 दिन भी ठीक से कर लेंगे उस प्रैक्टिस को, तो उनकी वैसी ही छू हो जाती है, होना ही नहीं है। लेकिन जानते नहीं है, अपनाना नहीं जानते, आलस बहुत है तो करते नहीं है, 4 दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे। तो मेरा सबसे कहना है कि अगर आपको बहुत स्वस्थ, खुश और सुंदर रहना है तो योग को अपनाना है। वो अपने आप नेचुरल ब्यूटी देता है, तो आपको मेकअप करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आप खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे तो आप ब्यूटीफुल भी लगेंगे। और यही हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारी मोदी जी की सरकार है, पीएम नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो किस तरीके से योग को इस दौरान, इस सरकार में जो योग को जिस हद, जो चरम पर ले जाने की कोशिशें की गई हैं, वो अभी तक मुझे नहीं लगा कि मैंने कहीं देखी। और जब सरकार में इतने जिम्मेदार और इतने कार्यकुशल चौकीदार जब नियुक्त किए जाते हैं, तो डेफिनेटली देश की तरक्की में 4 चांद लग जाते हैं। आज आप हमारे साथ इस महत्वपूर्ण पर्व पर जुड़ी, जो कि ESNF का फाउंडर्स डे है। आज आप हमारी मुख्य अतिथि रही, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे इनविटेशन पर आपने अपना वक्त दिया, आपने अलग अलग एस्पेक्ट्स हमारे साथ डिस्कस किए इस छोटे से सेशन में। हालांकि ये सच है कि मेरा मन नहीं है कि इस सेशन को एंड किया जाए, लेकिन जिससे पहले ये रूम फिर से एक लॉक हो जाए, उससे पहले और जो एक और चीज़ है, अगर आप कभी भी ग्वालियर आए तो प्लीज़ मुझे परेशानी दीजिएगा, एंड डेफिनेटली वी विल मीट एनी टाइम, मे बी इन भोपाल, Mumbai, and Gwalior is one definite place that will do. We wish you for your good health, goodwill, और ऐसे ही आप हमेशा मुस्कुराती रहें, हंसती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या, मैं जरूर ग्वालियर आऊंगी, तो आपके हाथ का पहले हलवा खाना है, मुझे खाना ही है। और आपका कभी भी इधर आना होता है, मुंबई आना होता है, भोपाल आना होता है, तो जरूर मिलना। और ऐसे ही बहुत अच्छे काम करते रहो ऐश्वर्या, आपके जैसे युवाओं की देश को बहुत जरूरत है। थैंक यू। तब जरूरी नहीं है कि युवा बड़े होकर खाली वो बॉर्डर पे लड़े या कुछ ऐसा बड़ी नेता बने। लोगों के माइंडसेट को बदलना, लोगों के बीच में बौद्धिक विचारधारा को लेके जाना, उनकी जो छुपी हुई प्रतिभाएं उनको ऊपर निकाल के लाना, ये छोटा काम नहीं है जो आप कर रहे हो। और वो भी छोटी उम्र में, 15-16 साल की उम्र में। तो मेरा बहुत बहुत मेरी शुभकामना है, बहुत आशीर्वाद है, आप आगे चल के बहुत सही अच्छी जगह पर जाओगे, मैं ये ऐसी उम्मीद करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, these words means a lot। और जैसा कि हम देखते हैं आए दिन कि आप
देश में यहाँ से वहाँ होती रहती हैं, आप बहुत गतिशील पर्सनैलिटी हैं, तो ऐसे ही आप पूरे देश को अपने कदमों से नापें, नई नई जगह इजाद करें और फिर फोटोज खींच के, जो कि आपकी बड़ी पसंदीदा चीज है, वो आप डालती हैं जैसा कि, और उन्हें देख के हम भी पूरा देश अभी ऐसे ही घूमें, एंड देन आवर टाइम देन वील आल्सो गो ऑल द प्लेसेस। अपनी ये बहुत गलत फहमी है कि मैं घूमती रहती हूँ, पर मैं एक बात बता दूं कि मैं बिना काम के घर से कभी नहीं निकलती। मुझे बहुत आलस आता है, लेकिन मुझे जाना ही पड़ता है। जब कोई मीटिंग्स होती है और एक साथ दो चार काम आते हैं तो फिर मैं जाती हूँ। तो जाती काम से हूँ, लेकिन लोगों को फिर यही लगता है कि ये तो घूम रही साल में एक बार घूमने जाती हूँ बच्चों के साथ, बाकी सारा टाइम काम और अभी भी जाना है। तो धन्यवाद ऐश्वर्या, फिर आप जरूर कभी मिलेंगे आने पर या जहाँ कहीं। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।